Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, rational numbers. So far we have studied the system of natural numbers, whole numbers, integers and fractions. Since we are familiar with fractions, in fractions denominators and numerators are whole numbers, but 0 cannot be the denominator of a fraction. Now we will extend our knowledge by introducing rational numbers along with the 4 basic operations. देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शंस के बारे में, डेसिमल्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में और ये जो मतलब पूरा सिस्टम था नेचुरल नंबर्स का. अब थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग रेशनल नंबर्स. तो सबसे पहले जानते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रेशनल नंबर्स, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. आपके जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो p by q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपके सारे ही जो है रेशनल नंबर्स हैं. So there are two type of rational numbers. Positive rational numbers. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are both either positive or negative. क्योंकि देखिए अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा. Negative rational numbers. A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is a positive integer and the other is a negative integer. For example, या तो numerator आपका नेगेटिव होगा या फिर डिनोमिनेटर होगा. Some important facts of rational numbers. 0 is a rational number as 0 can be written as 0 by 1 or 0 by minus 1 or 0 by 100 or 0 by minus 512 etc. 0 आपका रेशनल नंबर है क्योंकि इसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. Every whole number and natural number is a rational number. For example, every integer is a rational number. For example, आपके integers भी rational number होते हैं. And every fraction is a rational number because it is in the form of a by b, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. Next is, remember that every fraction is a rational number, but every rational numbers may or may not be a fraction. For example, 7 by 21 is a fraction as well as a rational number, but minus 17 by 21 is a rational number but not a fraction. 0 is neither a positive nor a negative rational number. देखिए हर फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर होगा बट सारे रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शन नहीं होंगे. जैसे कि आपका देखिए अगर ये माइनस में है तो ये आपका रेशनल नंबर है बट ये आपका फ्रैक्शन नहीं है. Properties of rational numbers. If p by q is a rational number and m is a non-zero integer, then p by q is equals to p into m by q into m. It means a rational number remains unchanged if its numerator and denominator are multiplied by the same non-zero integer. देखिए कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है जैसे कि p by q की फॉर्म में, उससे आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जैसे कि m, तो आपको नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका p by q ही रहेगा. Right. Next is if p by q is a rational number and m is a common divisor of p and q, then p by q is equals to p divided by m upon q divided by m. It means if numerator and denominator of a rational number are divided by the same non-zero integer, it remains unchanged. Standard form of a rational number. A rational number p by q is said to be in standard form if q is positive and the HCF p and q is 1. आपका कोई भी रेशनल नंबर है जैसे p by q, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तभी कहेंगे अगर q पॉजिटिव होगा और p and q का जो HCF होगा वो 1 होगा. Hence, in order to express a given rational number into its standard form, we first convert its denominator in positive integer and then divide both numerator and denominator by their HCF. चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Express each of the following in standard form. सबसे पहले आपके पास है -22 by 55. अब आपका देखिए डिनोमिनेटर तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. अब चलिए इसका HCF आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि ये कौन सी टेबल से कट रहा है. जैसे कि देखिए ये 11 की टेबल में आएंगे दोनों, तो 11 से आप डिवाइड करेंगे इसे, तो आपका आंसर होगा 2 by 5 एंड माइनस. और अगर आपको नहीं मालूम है कि ये कौन सी टेबल में आते हैं, देन यू विल हैव टू टेक HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. चलिए एक और देखते हैं. नेक्स्ट इज 21 by -28. ओके, अब आपका डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव में है तो इसे पॉजिटिव करेंगे. पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा -1 से, राइट. तो आपका भी हो जाएगा 21 by 28 और अब आप इसे 7 से कट कर सकते हैं, 7 3 एंड 7 4. सो आपका जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा -3 by, राइट.
Remember that if the denominator of a rational number is negative, then on multiplying its numerator and denominator by -1, we can get a rational number with positive denominator. यही जो आपको इस एग्जाम्पल में समझाया वही इसमें आपको बात बताई गई है. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. टू obtain a rational number equivalent to the given rational number, denominator and numerator are multiplied or divided by the same non-zero integer. तो देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आप कैसे निकालेंगे वो जानते हैं हम एग्जाम्पल के जरिए. जैसे आपको दिया गया एक रेशनल नंबर -2/3 और उसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने. तो जैसे आप फ्रैक्शंस में करते थे, नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे, तो इसमें भी क्या करना है आपको. देखिए जैसे -2/3 है, आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा -4/6. फिर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 6/9. इसके बाद आप 4 से करेंगे, तो ऐसे करके आपके सारे जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल जाएंगे. Rational numbers on number line. All the rational numbers are represented on the number line like fractions. Only the difference is that positive rational numbers are represented on the right of 0 and the negative rational numbers are represented on the left of 0. देखिए जैसे हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे, हम रेशनल नंबर्स को भी कर सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि जो पॉजिटिव है रेशनल नंबर्स वो 0 से राइट साइड में आएंगे और जो नेगेटिव है वो 0 की लेफ्ट साइड में. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं. इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट -1/6 ऑन नंबर लाइन, वी विल फॉलो द गिवन स्टेप्स. देखिए सबसे पहले क्या करना है. फर्स्ट डिवाइड द गैप बिटवीन 0 and -1 into 6 equal parts. The first part on the left of 0 will represent -1/6. Here 0 OA represents -1/6. देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 0 और आपका जो -1 है इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर लेना है. और आपसे पूछा है -1/6, तो जो पहला है आपका ये -1/6 है. और अगर आपसे -3/6 पूछा होता तो आप माइनस यहाँ पर आते थर्ड नंबर पे, राइट. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. आपका है 5/6. 5/6 आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपका कहाँ जाएगा, राइट साइड. तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आपके 6 इक्वल पार्ट्स हैं, एंड देन आपका ये जो ए पॉइंट है दैट इज 5/6. Comparison of two rational numbers. Comparison of two rational numbers can be done as follows by representing their rational numbers on number line. In this method, first change the negative denominator into positive, if any, and then convert the given rational numbers into equivalent rational numbers with denominators equal to their LCM. And after this, represent them on the number line. The rational number line to the right of another number will be greater. देखिए कैसे कंपेयर करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आपको कंपेयर करना है -1/2 and 3/-5. सबसे पहले देखिए इसका डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव में है, तो अभी आपको बताया था जब नेगेटिव में होता है डिनोमिनेटर तो उसे सबसे पहले पॉजिटिव में करना है. तो आपका ये हो जाएगा -3/5, राइट. अब देखिए आपको क्या कंपेयर करना है. हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका नंबर लाइन पे. अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 and -3/5. तो देखिए आपके पास ये नंबर लाइन है. सबसे पहले आपके पास 0 और उसके बाद आपके पास, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट साइड में आएगा, राइट. तो देखिए आपके ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपके 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि देखिए -1/2 एंड आपके पास आ गया -3/5. अब क्या करेंगे, हम इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे, तो एलसीएम इनका आएगा 10, राइट. ओके, अब जब एलसीएम निकाला हमने 10, तो इसको 10 करने के लिए कितना करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, इसे भी 5 से, -5/10. इसी तरह से 10 करने के लिए 2 से करेंगे, तो इसे भी 2 से करेंगे, तो -6/10, है ना. अब इनकी जो डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो गए, तो क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे. आपका एक पार्ट आएगा -5/10 और दूसरा पार्ट आएगा आपका -6/10. ओके, ये तो है आपका फर्स्ट मेथड, यानी कि बाय रिप्रेजेंटिंग द रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. सेकेंड इज बाय कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स. In this method, first change the negative denominator into positive, if any, and then convert the given rational numbers into equivalent rational numbers with the denominators equal to their LCM. And after this, compare the numerators. The rational number having greater numerator is greater. देखिए जैसे हम आपका फ्रैक्शन नंबर में करते थे, ऐसे ही हम रेशनल नंबर्स में भी करेंगे. जैसे आपके पास है -5/7 एंड 3/-4. सबसे पहले अगर आपके पास डिनोमिनेटर नेगेटिव में है तो फर्स्ट उसे आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे, राइट. पॉजिटिव में चेंज करने के बाद आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आपको पता है कि डिनोमिनेटर्स आपके इक्वल करने पड़ते हैं, और उसके बाद हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं.
Third method is by cross multiplication. In this method, first change the negative denominator into positive, if any, and then multiply numerator of first with the denominator of second and numerator of second with denominator of first rational numbers and compare this as follows. देखिए, let p by q and r by s are two rational numbers such that q and s are positive integers. Then आपको क्या करना है, देखिए आपके पास दो rational numbers है p by q and r by s, राइट आप इस तरह से उन्हें इक्वेट करेंगे, p by q is equals to r by s, और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आपका इस तरह से p को s से मल्टीप्लाई करेंगे, r को q से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर आपका p by q ग्रेटर आता है r by s से, दैट मीन्स आपका क्या था, दिस. ओके, और आपका ये अगर लेस आएगा इसका मतलब ये वाली कंडीशंस थी, राइट. जैसे आपने फ्रैक्शन में कंपेयर किया था, सेम रेशनल नंबर्स में भी करना है. Remember that every positive rational number is greater than 0 while every negative rational number is less than 0. Every negative rational number is less than every positive rational number. जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो सारे ग्रेटर देन 0 होते हैं, और जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे ही 0 से छोटे होते हैं, और जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे ही पॉजिटिव रैशनल नंबर से छोटे होते हैं. फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. अब आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे. इफ वी हैव टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 7/4, देन आप इमीडिएटली बता देंगे कि -3/4 और 7/4 के बीच के कौन से रेशनल नंबर है ना. -3/4 ये आपने नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट किया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम थे, राइट. तो आपको इजीली पता चल गया कि इनके बीच के कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं. अच्छा, इसके बाद देखिए हम -3/4 को हम -30/40 भी लिख सकते हैं, एंड 7/4 को हम 70/40 भी लिख सकते हैं, है ना. तो अब इनके बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स आ गए, इनके बीच में आ गए 99 मोर रेशनल नंबर्स, यानी कि सेम आपके पास रेशनल नंबर है, और पहले हमने निकाले थे 5 रेशनल नंबर्स, अब इनके बीच में 99 है. इसी तरह से आप -3/4 को -300/400 भी लिख सकते हैं, एंड 7/4 को हम 700/400 भी लिख सकते हैं, यानी कि इनके बीच में अब कितने सारे आपके यानी 999 रेशनल नंबर्स आ गए. इसका मतलब we can go expressing -3/4 and 7/4 with larger and larger denominators and find more and more rational numbers between them. Hence, there are infinite rational numbers between any two rational numbers. Remember that. Infinite rational numbers होते हैं किन्हीं भी दो rational numbers के बीच में. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are rational numbers? इनमें से कौन से rational numbers हैं? आपका ये रेशनल नंबर है, आपकी ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि p by q की फॉर्म में. ओके, बाकी आप ऐसे ही करेंगे और खुद फाइंड आउट करेंगे कि विच ऑफ देम आर रेशनल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स. -9, माइनस को 9/1 लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव, और रेशनल नंबर इसको 2/1 लिखेंगे, आपका है पॉजिटिव रेशनल नंबर. बाकी आप खुद से फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. आपको सबसे पहले दिया गया है 15/195. आप क्या करेंगे, 15 से कट हो जाएगा, 15 1 एंड 15 3. तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, 1/13. ओके, बाकी आपको ऐसे ही करना है. Next is addition of rational numbers. Before adding any two or more than two rational numbers, first convert each of them into a rational number with positive denominator and then apply one of the following cases. When denominator of the given rational numbers are equal. In this case, we follow the given steps. Add the numerators and write the common denominator. Divide the numerator by the common denominator. देखिए, अब आपको दो rational numbers को प्लस करने हैं, तो फर्स्ट केस है अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है, तो देखिए -3/8 एंड 5/8 आपके पास ये दो रेशनल नंबर्स है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, है ना. तो -3 + 5 इज आपका हो जाएगा 2/8, राइट. अब 2/8 है, आप इसे क्या कर सकते हैं, ये आप 2 की टेबल में आते हैं दोनों, आप इसे कट कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा 1/4. नेक्स्ट है आपका केस 2,
when the denominators of given rational numbers are unequal. In this case, we follow the given steps. Step 1, find the LCM of the denominators. Express each rational number with the LCM as a common denominator. And number 3, add the resulting rational numbers as in case 1. अब आपने क्या करना है, अब आपके denominators unequal हैं, जैसे कि आपके पास है 2/5 and -3/4. आपके denominators डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहले भी किया है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है एलसीएम लेके, राइट. तो जब आप एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 20, 5 and 4. तो 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आप 4 से करेंगे, तो जाएगा आपका 8/20. इसी तरह से -3/4, यहाँ 20 करने के लिए आप 5 से करेंगे, तो यहाँ भी 5 से, ये आपका आ जाएगा -15/20. अब देखिए आपके डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम आ गए. अब आपको प्लस करना है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया था. Additive inverse of rational numbers. If the sum of two rational numbers is 0, then they are said to be additive inverse of each other. That is, if p by q is a rational number, then its additive inverse will be minus p by q. Since p by q plus minus p by q is equals to 0, hence minus p by q is the additive inverse of p by q and vice versa. देखिए जब दो rational numbers का sum 0 आता है तो हम उन्हें कहते हैं कि वो एक दूसरे के additive inverse है. जैसे कि p by q का additive inverse होगा माइनस p by q, क्योंकि दोनों को प्लस जब करेंगे तो 0 आंसर आएगा, राइट. चलिए अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स. जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी आपका सेम होगा. एडिशन में हम सिर्फ प्लस कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन में आपको ऑब्वियसली माइनस करना है. To subtract two rational numbers, we follow the given steps. Step 1, find the additive inverse of rational numbers to be subtracted. Step 2, add the other rational number and the additive inverse of rational numbers. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो rational number का additive inverse जिसको आप subtract कर रहे हैं वो निकालना है. जैसे कि देखिए आपके पास है, subtract करना है -3/4 from 2/3. ओके, सो 2/3 में से आपको माइनस करना है -3/4. ओके, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपके पास -3/4 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है आपके पास 3/4, है ना, पॉजिटिव 3/4. तो आपका इस तरह से आ जाएगा. अब आप क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा, कितना आएगा एलसीएम, 12 आएगा, राइट. और फिर आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को 12 करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर देंगे, राइट. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. आपको इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना है. ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम है, -2/5 एंड 1/5. सो -2/5 प्लस 1/5 -2 प्लस 1/5 यानी कि -1/5. तो ये बहुत इजी है, इसे आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. और देखिए जिनमें आपके डिनोमिनेटर्स आपके सेम नहीं है, जैसे इसमें, तो आप उसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. देखिए आपको -8/9 माइनस करना है 11/9 में से, आपको माइनस करना है -8/9. ओके, अब आपका डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता है -8/9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा पॉजिटिव 8/9. तो आप लिखेंगे यहाँ पे 11 + 8 इज इक्वल्स टू 19/9. ओके, multiplication of rational numbers. To multiply two rational numbers, we follow the given steps. First, find the product of the numerator and denominator of the two given numbers. Step 2, write the product as product of numerators, product of denominator. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे आप पहले भी करते हुए आए हैं. -3/4 एंड -5/8. न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एंड डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि देखिए 1 2 नेगेटिव साइंस हैं, 2 यानी कि आपका इवन नंबर, तो आपका आ जाएगा 15/32. ओके, एग्जाम्पल भी आपके ऐसे हैं, इन्हें आपको ऐसे ही करना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 1, देन ईच नंबर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each other. That is, if p by q is a rational number, then q by p will be its reciprocal or multiplicative inverse. Since p by q into q by p is equals to 1, hence q by p is the reciprocal of p by q and vice versa. ये आप multiplicative inverse ये rational numbers fraction में भी करके आए थे, तो rational number में भी आपका ऐसे ही है,
right? Remember that the reciprocal of 0 does not exist. The reciprocal of 1 is 1, obviously, and the reciprocal of -1 is -1, obviously. Division of rational numbers. To divide a rational number by the other rational number, we follow the given steps. Step 1, first find the reciprocal of the divisor. Now multiply the other rational number by reciprocal of the divisor. अब आप divide कैसे करेंगे? Similarly, जैसे आपने फ्रैक्शन में किया था, सबसे पहले आप डिवाइजर का रेसिप्रोकल करेंगे एंड वहां पे फिर आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा. रिमेंबर दैट इफ p by q is a rational number, then p by q divided by 1 is equals to p by q, and p by q divided by -1 is equals to minus p by q. The quotient of two rational numbers is always a rational number provided the divisor should not be 0. If p by q is a rational number, then 1 divided by p by q is equals to q by p, and minus 1 divided by p by q is equals to minus q by p. Division of a rational number by 0 cannot be defined. ये आपको पहले भी बताया था कि 0 से किसी भी rational number को आप divide करते हैं, इसको हम define नहीं कर सकते, right? चलिए example देखते हैं. Find the quotient of the following. देखिए कैसे करना है आपको. 7 by 15 divided by minus 2 by 3. सबसे पहले divisor का आपने रेसिप्रोकल करना है, और जैसे ही आप उसे रेसिप्रोकल करते हैं आप यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं. ओके, फिर अगेन सेम प्रोसीजर. न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो आपका देखिए क्या आंसर आएगा. आप चाहे तो इसे कट कर सकते हैं 7 by -10, ओके, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -7 by 10, राइट? चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 by 3 एंड 6 by 7. 3 1s are 3 2s are. आपका आंसर आ गया -4 by 7. इसी तरह से आपने बाकी नंबर्स को भी करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. 3 by 4 डिवाइडेड बाय 3 by 4. अब आप क्या करेंगे, देखिए -3 by 4, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 4 by 3. 3 3 goes, 4 4 goes. Answer is -1. Okay. Question number 3. Simplify the following. देखिए एक ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, देन बीच में प्लस है, देन मल्टीप्लाई. तो देखिए इसे कैसे करते हैं. चलिए हैव अ लुक. -15 by 2 into 2 by 5. राइट, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट है. देन प्लस अगेन आपका एक दूसरा ब्रैकेट शुरू हो रहा है -1 by 2 into -1 by 2. ओके, तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए देखिए ये आपका 2 है, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, 5 3 तो ये आपका आ गया -3 प्लस 1 by 4. 3 plus 1 by 4. अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा. यहाँ 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो यहाँ भी 4 से. -12 plus 1 is equals to -11 by 4. Overview. The numbers in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers. All the integers and fractions are rational numbers. A rational number p by q is said to be in standard form if q is positive and the HC of p and q is 1. Equivalent rational numbers can be determined by multiplying or dividing the numerator and denominator of the given rational number by the same non-zero integer. On the number line, all positive numbers are represented on the right of 0 and all negative rational numbers are represented on the left of 0. देखिए आपको पता ही है कि जो आपके जो rational numbers होते हैं, जो पॉजिटिव हैं वो 0 से राइट साइड में आएंगे, जो नेगेटिव हैं वो आपके 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे. If p by q and r by s are two rational numbers such that q and s are positive integers, then p by q is equals to r by s if p into s is equals to r into q. Second is, if p by q is greater than r by s if p into s is greater than r into q. And third, p by q is less than r by s if p into s is less than r into q. If the sum of two rational numbers is 0, then they are said to be the additive inverse of each other. If the product of two rational numbers is 1, then they are said to be multiplicative inverse or reciprocal of each other. जब दो rational numbers का sum 0 होता है तो वो एक दूसरे के additive inverse होते हैं, and जब दो rational numbers का product 1 आता है तो उन्हें हम बोलते हैं वो एक दूसरे के multiplicative inverse हैं या फिर reciprocal है. Division of a rational number by 0 cannot be defined.
चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।